وہ کمزور تھے. امام کائنات محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک ایسا وقت آیا کہ انہی عربیوں کے اوپر اسی طرح حملہ ہوا جس طرح آپ کے آبا و اجداد پہ حملہ ہوا تھا, جس طرح آپ کے باپ دادا پہ مکہ میں حملہ ہوا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی مدینہ طیبہ میں حملہ ہوا. اس وقت دشمن ہاتھی لے کر آیا تھا. اس وقت دشمن ہاتھی لے کر آیا تھا, بڑی تعداد کے ساتھ آئے تھے. اور اس وقت مدینہ طیبہ کی کل آبادی 5-6 ہزار آدمیوں میں مشتمل تھی, اور حملہ کرنے والے دشمن 24,000 کا لشکر لے کر آیا تھا. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اور ان یہودیوں کو جن سے آپ کا معاہدہ تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو تم ہماری مدد کے لیے نکلو گے, اور اگر تم پر حملہ ہوا تو ہم تمہاری مدد کے لیے نکلیں گے. یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو. لوگ نکلنے لگے. جب مدینہ کے دروازوں پر پہنچے تو تعداد کو گنا گیا 3,000 آدمی. 3,000 آدمی, اس میں مسلمان بھی تھے غیر مسلم بھی تھے. 3,000 اور دشمن 24,000 کا لشکر لے کر آیا تھا. کتنا؟ 24,000. اور مسلمان بے سر و سامانی کا شکار تھے. نہ ان کے پاس بہت زیادہ گھوڑا تھا, نہ اونٹ تھے, اور نہ ہی ان کے پاس وہ اوزار, وہ ہتھیار, وہ تلوار تھے. کچھ نہیں, بہت کم تھے. اور دشمن پوری تیاری کے ساتھ 24,000 کا لشکر لے کر آیا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنے؟ 3,000. ان میں مسلمان بھی تھے, غیر مسلم بھی تھے, جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں, جب اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم کھسک رہے ہیں, غیر مسلم بھاگ رہے ہیں. جب یہودیوں نے سنا کہ 24,000 کا لشکر آیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم کیوں مارے جائیں, ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے. اور یہودیوں نے یہ کہا کہ آج دنیا کی کوئی طاقت ان مسلمانوں کو ان کافروں سے نہیں بچا سکتی, ہم کیوں دشمنی اختیار کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 اور بعض روایت میں آتا ہے 1300 بھاگ نکلے. جتنے کے جتنے یہود تھے سب کے سب بھاگ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1700 ساتھی آپ کے ساتھ باقی رہ گئے. کتنے؟ 1700. اور دشمن 24,000. 1700 24,000 ایک کے ساتھ 1,000 سے بھی زیادہ. وہ کون سی طاقت تھی, وہ کون سا جذبہ تھا, وہ کون سا ایمان تھا, انہیں کن سے محبت تھی؟ یہ 1700 اور 24,000. کوئی حساب ہے؟ ایک طرف 1700 اور ایک طرف 24,000, لیکن تیار ہے. انقلاب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انقلاب تھا. وہ پاور, وہ طاقت, وہ جنون, وہ جذبہ, وہ ایمانی طاقت, اللہ سے محبت اور اللہ رب العالمین سے بھروسہ, اور اس کے علاوہ دنیا والوں پر بھروسہ نہیں تھا. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ یہود جتنے تھے تمام کے تمام بھاگ چکے ہیں اور میرے ساتھی صرف 1700 باقی رہ گئے ہیں, آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا, اور میرے ساتھیوں بیٹھ جاؤ.
जितने सहाबा थे तमाम के तमाम बैठ गए। आपने कहा, मेरे साथियों, तुम में से भी जो पलटना चाहे पलट जाए, मेरी तरफ से इजाजत है। जो लौटना चाहे लौट जाए, मेरी तरफ से इजाजत है। इतना बहादुर थे, इतना बहादुर थे कि जा सकते हो, कोई रुकावट नहीं है। इमाम कायनात, बहादुरों का बहादुर, दिलेरों का दिलेर, कायनात ने, चश्मे फलक ने इतना बहादुर नहीं देखा जितना बहादुर अल्लाह ने मेरे हबीब पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहादुर बनाया था। इमाम कायनात की जुबान से, जुबान अक़दस से कभी बुज़दिली की बात नहीं निकले, कभी मुनाफिकत का कलमा नहीं कहा। मक्का में रहते हुए लोगों ने कहा था, मुशरिकों ने कहा था, आइए कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ दिन आप हमारे खुदाओं को मान ले, कुछ दिन हम आपके खुदा को मान लेंगे। अर्श वाले ने कहा, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। जाओ तुम काफिर हो, जाओ तुम मुशरिक हो, हम तुमको मुसलमानों के सफ में खड़ा होते हुए देखना गवारा नहीं करते, मैं तुमसे सुलह कर लूं। इतना बहादुर, इतना दिलेर उस नबी की उम्मत है हम, उस नबी के मानने वाले हैं हम, और आज 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाते। उन्होंने इस दीन की खातिर कुर्बानी दी, और आज हम इस दीन के लिए अपने वक्त की कुर्बानी नहीं दे पा रहे हैं, 5 वक्त की नमाज तक पढ़ नहीं पा रहे हैं। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी का आलम ये था। और 2-4 मिनट, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा बयान करते हैं, अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी का आलम यह था कि जब जंग जोर पे होती, जंग के शोले भड़क रहे होते, दुश्मन आपकी तपिश को, बहादुर आपकी तपिश को बर्दाश्त ना करते हुए पीछे पलट जाते, और हम इमाम कायनात को देखते कि वो आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना बहादुर, इतना दिलेर, इतना मजबूत, इतना जुनून और इतना ताकत वाले थे हमारे नबी। और आज हम उस उम्मत के मुसलमान, लेकिन अफसोस होता है, अफसोस होता है, जवान तो जवान, आज बूढ़े भी इबादत नहीं कर पा रहे। इमाम कायनात, हदीस के अल्फाज हैं, एक जंग में, गज़वा हुनैन में, दुश्मन ताक लगा के बैठा हुआ पत्थरों की ओट पर, पहाड़ों की ओट पर दुश्मन ताक लगा के बैठा हुआ, और मुसलमान बेख्याली के आलम में आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। उनको पता भी नहीं था कि दुश्मन ने घाट लगा के बैठा हुआ है। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं कि दुश्मन घाट लगाई हुई है। कहता हूं ना, ईमान हो, बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। ईमान हो, बड़ी बड़ी ताकत को झुका सकते हो। ईमान हो, बड़ी बड़ी हस्ती को गिरा सकते हो। शर्त है कि ईमान मजबूत होना चाहिए। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हट जाओ, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले दुश्मनों का मुकाबला करेगा। तुमने क्या समझा है? मैं पीछे पलट जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं पुष्ट दिखा दूंगा? नहीं, दुनिया देखेगी, कायनात देखेगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले दुश्मनों से लड़ रहा है, अकेले दुश्मनों से सामना कर रहा है। उस वक्त फिर कौम तैयार हो चुकी थी।
उस वक्त कौम तैयार हो चुकी थी। एक शख्स उठा और कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम मूसा की कौम नहीं जो आपसे कहेंगे आप लड़िए, आपका खुदा लड़े, हम पीछे बैठे हुए हैं। या रसूल अल्लाह, हम मूसा की कौम नहीं, आप हुक्म दीजिए, हम आपकी उम्मत हैं, हम आपके मानने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दीजिए, आप इरशाद फरमाइए, आप सिर्फ कह दीजिए कि पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दो। या रसूल अल्लाह, हम पहाड़ की चोटी से छलांग लगा देंगे, ये सवाल नहीं करेंगे कि आपने हुक्म क्यों दिया। या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दीजिए, आप इरशाद कीजिए, आप कह दीजिए कि समंदर के सीने को चीर दो। या रसूल अल्लाह, समंदर के सीने को चीर देंगे, ये सवाल नहीं करेंगे कि आपने हुक्म क्यों दिया। फिर इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक उठा, दमक उठा और कहा, साथियों फिर उठो और याद रखना, दुश्मन अपनी ताकत, अपनी कुव्वत के बलबूते पर आया है, उस पर भरोसा करके आया है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जात पर भरोसा करके आया है। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरा कहने का मकसद और मतलब यह है कि अगर कोई जुआ खेलते हो छोड़ दो, कोई शराब पीते हो छोड़ दो, कोई बदकारी और जिनाकारी में लगे हुए हो छोड़ दो। इस दीन के खातिर उन लोगों ने बहुत ज्यादा कुर्बानी की है। उन लोगों की कुर्बानी को याद करो और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करो। जिस तरह जुमा के दिन मस्जिद में आते हो, नमाज पढ़ते हो, यकीन के साथ मैं कहता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि आपको भी नमाज पढ़ने का मन करता है, लेकिन मुआशरे के अंदर हालत ऐसी हो चुकी है कि अगर कोई नमाज पढ़ना चाहता है, लेकिन आजू बाजू के लोग उसे इतना परेशान करते हैं, अगर वो एक वक्त नमाज पढ़ लेता है इतने ताने मारते हैं, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि वो नमाज पढ़ने वाला इंसान भी नमाज छोड़ देता। तो उनकी बातों में हमें नहीं चलना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी पागल कहा गया, कभी दीवाना कहा गया, कभी जादूगर कहा गया, कभी शायर कहा गया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नहीं हटे, अपना काम करते गए। यहां तक के दुश्मनों ने बहुत परेशान किए। नमाज की हालत में ऊंट का जो चमड़ा होता है, उतना बड़ा चमड़ा सजदे की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रख दिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टस से मस भी नहीं हो पाते थे, इतना परेशान किए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का काम करना नहीं छोड़े, तबलीग करना नहीं छोड़े, काम करते गए और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा शहर या देश या गांव नहीं जहां पर मुसलमान नहीं है। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा जिक्र और अज़कार करें, ज्यादा से ज्यादा दीन की तबलीग करें, लोगों को दीन के बारे में बताएं, बुराइयों से रोकें। अगर कोई बुराई करता है तो उसे समझाएं कि ये गलत काम है, चोरी करना गलत है, जुआ खेलना गलत है, शराब पीना ये गलत है। ये सब गलत ही नहीं, हराम ही नहीं, बहुत बड़ा जुर्म है, इससे बचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को ज्यादा